Welcome back. Today we are going to discuss, rather differentiate between colonialism and capitalism, the structure and legacies of these two terms, the ruling terminologies, the working terminologies, like. So let's start. In its introduction, we can say that disentangling the engines of the modern world, the objectives to define and differentiate the two dominant forces that have shaped the global history, colonialism and capitalism. These systems often intersected and but they are not identical. The one is political and administrative structure, while the other is economic system. And the stakes are obviously understanding their distinct structure is crucial for accurately analyzing their deep and often lasting legacies in the modern world. So colonialism, the hallmark is a political and legal system of foreign domination. They commanded the world geographic boundaries, whereas the capitalism is bit different but have the same purpose, an economic system which is based on the private ownership, where the competition is the hallmark and private ownership of a production and the free markets. So the anatomy of the colonialism is, we know that how it operates like imposition of sovereignty, like the forced political control, indigenous structures dismantled by these colonizers, state-led extracted economy, resources. They occupied the resources of those foreign lands. They occupied their minerals, their agricultural goods, their labors, and they flow all the money to the metropole, to their own country. Captive markets, colonies must buy. They have a strong kind of checks on the colonies that the colonies must buy expensive finished goods from the metropole, and on side by side those colonies will sell their raw materials on a very cheap rate to those metropoles. And forced cultural assimilation means they introduce their own language, their own legal systems, and religions. They are imposed on those peoples to solidify for their controls. Iconic entity like the English East Indian Company in South Asian countries, in South Asia, like India, a state chartered monopoly using military force for trade, and they use different methodologies. So that's the anatomy of colonialism. And now coming toward the mechanics of capitalism, that how it operates. Private property rights. Individuals can own land, capital and their own labor. फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट है इनका, कंपटीशन जो है इनके यहाँ बहुत ज़्यादा है, एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल हॉल मार्क है इनका, प्रॉफिट सीकिंग है, रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट है। और सेल्फ इंटरेस्ट तो अगर नहीं होगा तो फिर प्रॉफिट, परसूट ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा और फिर मार्केट डिक्लाइन कर जाएंगी और कैपिटलिज्म का मकसद फोत हो जाएगा। ठीक है, आइकॉनिक थिंकर इसके एडम स्मिथ हैं जिन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशन लिखी थी, और यानी कि सिस्टम ऑफ परफेक्ट लिबर्टी। ठीक है जी। तो अब इन दोनों का डेल्विश यूनियन देखते हैं, इंटरसेक्शन। वाइल डिस्टेंट हैं, कैपिटलिज्म और colonialism वर ऑफन symbiotically linked ड्यूरिंग द एज ऑफ एम्पायर, का जो एम्पायर बिल्डिंग का जो ज़माना है वहाँ पर इन दोनों को हम किसी एक पेज पर देख रहे हैं। यानी colonialism प्रोवाइडेड द कैपिटल, colonialist colonial पावर्स, मेट्रोपोल्स, इनका मकसद ही जो है वो ये था, ये रहा है कि कैपिटल प्रोवाइड करना, यानी दौलत को एक्सट्रैक्ट करना उन कॉलोनीज से
यानी सिल्वर की शक्ल में हैं, गोल्ड की शक्ल में हैं, जैसे सिल्वर फ्रॉम अमेरिकाज, कॉटन फ्रॉम इंडिया और स्पाइसेस वगैरह वगैरह इंडिया से। ठीक है, फ्यूल्ड द वेरी कैपिटलिस्ट इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक, अपने उन्होंने उनकी स्टॉक मार्केट ज़्यादा हुई, उनके इन्वेस्टमेंट पूल्स जो हैं वो बड़े हुए, और जिसने जो पावर्ड किया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को यूरोप के अंदर। तो ये इसकी एक वजह रही है थ्रू आउट द हिस्ट्री डेट कलोनियलिज्म ने कैपिटल प्रोवाइड किया। द सेकंड वन इज कैपिटलिज्म फाइनेंस द एम्पायर। एम्पायर खड़ी हुई, एम्पायर को फाइनेंस किया, प्राइवेट कंपनीज बनाई इन्होंने। जैसे हम अपने इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को देख रहे होते थे, ये इसकी ग्लैरिंग एग्जांपल है। तो प्राइवेट कंपनीज और मौजूदा ज़माने में एंड बैंक्स ऑफन फाइनेंस colonial ventures seeking profit from resource extraction and new captive markets का तस्वर। ठीक है, केस इन पॉइंट ट्रांस अटलांटिक स्लेवरी, यानी इन्होंने एक नई चीज़ जो है वो उस ज़माने में इंट्रोड्यूस की थी कि कैपिटलिज्म प्रोवाइडेड द इन्वेस्टमेंट, शिप्स, plantations. Colonialism provided the administrative and legal system that made the violent extraction of human labor पॉसिबल, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फिर वो उनको स्लेव बनाना और फिर उनसे फोर्स्ड लेबर और ये सारी चीज़ें जो है वो उससे जो है वो अपना एक्सट्रैक्ट करके अपना जो है वो कैपिटल प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो ये तमाम जो हैं वो दोनों मिल मिलाकर कहीं एक दूसरे को, यानी इनका एक इम्तिजाज जो है वो वेडलॉक जो है वो रहा है थ्रू आउट द हिस्ट्री। नाउ कमिंग टुवर्ड द लेगेसीज, capitalism, economic and market dynamics. Yani the legacies of capitalism, especially in the context of colonialism, अगर देखा जाए तो they are primarily economic and inequality based हैं। यानी persistent inequality, यानी यानी लगातार इनके यहाँ नाइंसाफ़ी रही है। जैसे हमें दुनिया के अंदर नॉर्थ साउथ एक वो नज़र आती है, ग्लोबल नॉर्थ साउथ डायलॉग, यानी उनकी एक बेचैनी, एक नाइंसाफ़ी, यानी जो नॉर्थ के कंट्री हैं वो साउथ के कंट्रीज़ को हमेशा उन्होंने पुअर रखा और उनके ऊपर। तो द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सट्रैक्शन क्रिएट ये, यानी पास्ट की जो एक्सट्रैक्शन है वो लगातार रही और उसने आगे जाकर फ्यूचर में एक कोर प्रेफरी डायनामिक क्रिएट किया वेयर द ग्लोबल नॉर्थ रिमेन्स वेल्दी रहे और इंडस्ट्रियल रहे, एडवांस रहे टेक्नोलॉजिकली और तमाम जगहों पर, और ग्लोबल साउथ जो है वो एक रिसोर्स सप्लायर रहा है, रॉ मटेरियल और फिर उनके ऊपर जो है वो ऑक्युपाई करना और ये सारी चीज़ें जो है वो। तो इससे मार्केट डायनामिक्स जो है वो हमें कहीं वाज़ेह नज़र आती है। ये एक लेगेसी इनके यहाँ ये ग्लोनियल्स की, जिसने कैपिटलिज्म को और फिर नॉर्थ साउथ जो है वो ये वाली। तो सेकंड वन है मोनोकल्चरल इकोनॉमीज। मैनी फार्मर कॉलोनीज जो भी रही हैं वर फोर्स टू डिपेंड ऑन अ सिंगल कैश क्रॉप। कैश क्रॉप जो कि मेट्रोपोल की कॉलोनाइजर की अपनी मर्जी होती थी। ठीक है, कैश क्रॉप या रिसोर्स, यानी रबड़ है, कोका है, ऑयल है, स्पाइसी है, कॉटन है, जितनी भी चीज़ें हैं, मेकिंग देम वल्नरेबल टू ग्लोबल मार्केट वोलेटिलिटी। ठीक है, यानी मोनोकल्चरल इकोनॉमी, यानी जो उनकी मर्जी थी, मोनोकल्चरल यानी एक चीज़ जो उनको चाहिए थी वही चीज़ प्रोड्यूस करना। स्टंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉर सेंचुरीज कॉलोनीज जो थी वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, leaving them decades behind in industrial development. Inequality of opportunity, यानी the accumulation of capital जो कि नॉर्थ के पास रहा है हैपेंड इन द मेट्रोपोल, नॉट द कॉलोनी, while land resources infrastructure remains concentrated in the hands of the global north and local post colonial elites। ये कैपिटलिज्म की इकोनॉमिक और मार्केट डायनामिक्स रही हैं, दोनों ने मिलाकर इसको वो किया। अब हम लेगेसीज को आगे मजीद इसमें देखते हैं कि वो कॉमन ग्राउंड या डिस्टेंट डिस्टेंट जो फीचर्स हैं अ, वो क्या रहे हैं। नंबर वन है
लेगेसी एरिया। अब इसको मैंने एक कॉलम के ज़रिए जो है वो इसको वाज़ेह करने की कोशिश की है कि जिसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे जो कि स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो जाती है ताकि वो उसको पेपर में भी और इस फ़र्क के साथ जो है वो समझ सकें। सो कॉमन ग्राउंड डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट फ्लेवर्स हेयर लेगेसी एरिया और कॉलोनियलिज्म जो है वो एशिया और कैपिटलिज्म जो है वो इको, ये दोनों के कॉन्टेक्स्ट में हम देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो इनइक्वालिटी है। कॉलोनियलिज्म में जो है वो हमें सिस्टमैटिक नज़र आती है इनइक्वालिटी, कार्सिव नज़र आती है, रूटेड इन हिस्टोरिकल स्टेट, इन्फोर्स्ड थेफ्ट और ये तमाम जो चीज़ें जो हैं वो हमें नज़र आती हैं। जबकि कैपिटलिज्म में हमें मार्केट बेस्ड नज़र आती है, ड्रिवन बाय डिफरेंसेस इन एक्सेस टू कैपिटल, रिसोर्सेज एंड इनोवेशन विद इन अ कैपिटलिस्ट सिस्टम। इसी तरह से लेगेसी एरिया में अंडर डेवलपमेंट को देखा जाए तो कॉलोनियलिज्म जो है वो हमें इंस्टीट्यूशनल नज़र आएगी, ब्रोकन नज़र आएगी, स्टेट्स आर्बिट्रेरी लॉज नज़र आएंगे, लेक ऑफ पॉलिटिकल कैपेसिटी नज़र आएगी। जबकि कैपिटलिज्म में जो है वो अगर देखा जाए इसकी बाज़गश्त को तो वो इकोनॉमिक नज़र आएगी, यानी वीक इंडस्ट्रियल बेस है, डिपेंडेंसी है ऑन रॉ मटेरियल्स और अनफेवरेबल ट्रेड टर्म्स हैं। सो सॉवरेनिटी को देखें, सॉवरेनिटी कॉलोनियलिज्म में जो है वो उन रियासतों की बड़ी खतरे में रही है, थ्रेटन रही है, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रही है और पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा रही है। जबकि कैपिटलिज्म के अंदर सॉवरेनिटी को अगर देखें तो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है, वल्नरेबल टू ग्लोबल मार्केट फोर्सेस, डेप्ट है और मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस का जो है वो ज़माना है, ये इनका राज है, इनका होल्ड है। आगे चलते हैं, कंक्लूड करते हैं इसको, व्हाई द डिफरेंस मैटर्स। डायग्नोस्टिक टूल्स क्या हैं? वी कैन नॉट प्रॉपरली डायग्नोज मॉडर्न प्रॉब्लम लाइक ग्लोबल पॉवर्टी हो गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया, इफ वी conflate the symptoms of these two distant engines। ठीक है, tailored solutions क्या हैं? Fixing broken institutions, the legacy of colonialism requires different tools than fixing unfair trade terms or a lack of access to capital, the legacy of capitalism। और the takeaway क्या है? Colonialism was a structure of political dominance that facilitated theft। और capitalism क्या है? It is an economic system of exchange that, while often undertrained with debt theft, is built on the pursuit of profit through market mechanics। So, recognizing both is essential for navigating the complex legacy of the modern world। तो ये था आज का एक ब्रीफ सा लेक्चर रिगार्डिंग कॉलोनियल और कॉलोनियलिज्म और कैपिटलिज्म को डिफरेंशिएट करना। थैंक यू।